A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. You know very well. In the last few videos, we discussed the important numerical topic of the chapter number 7, accounting for share capital issue and forfeiture. You know very well, in the last video, we discussed the two important practical problems. The number one is the issue of share to the public for subscription, and the numerical quotient is related to the when share are issued at par. You know very well, there are basically two types of the issue of share. We can issue its share at par, that is a equal to the value of face value of the share, as well as the second type of the issue, that is a when company issued its share more than its face value, that is the issue of share at premium. And in the last video, we also discussed the preparation of bank account and the use of cash book when question is asking about the bank account. So in this situation, all the journal entries must be passed, as well as when question is asking about the preparation of cash book. So in this situation, all the entries related to the bank account should not be passed in the journal entries, and thereafter we prepare the bank account same as the we prepare the cash book same as the bank account. So it is very clear for you कि there are two situations given in the question. Either question is asking about the bank account, or a question is asking about the cash book. So when question is asking about the bank account, so in this situation you should prepare a bank account with the all journal entries which are studied in the last videos. And when question is asking about the preparation of cash book, so in this situation you have to prepare the cash book same as the bank account, but the all the entries which are related to the bank, that is a bank account debit to share application, bank account debit to share allotment, bank account debit to share first call, bank account debit to share final call, such kind of entries are not passed in the journal entries in the books of account of the company. So ये तो हो गई पुरानी बात. So today we will move to the next topic of this chapter. The topic is the number one topics today we will discuss. The first one is the issue of share at premium. So in this topic we discussed what are the situation when company issued a share at premium. Premium means when company issued its share more than its face value. And number two, what are the uses of the security premium. You know very well, जब कंपनी 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में सेल करेगी, इशू करेगी, तो जो 20 रुपीज उसके पास आएंगे वो उस 20 रुपीज का क्या करेगी. नंबर सेकेंड पार्ट. एंड नंबर थर्ड कि when company issued its share at premium, तो what kind of journal entries should be passed in our bank account in our account sorry. सो तीसरी बात हमें ये सीखनी ज़रूरी है कि जब हम शेयर को प्रीमियम पे इशू करेंगे तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे, यानी हमारी एंट्रीज में क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि दे आर बेसिकली व्हेन क्वेश्चन इज व्हेन शेयर इज इशूड एट पार तब और व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम दोनों में मॉनेटरी चेंजेस आ रहे हैं. जहां 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू हो रहा है, अब 100 रुपए का शेयर मोर देन द फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है, यानी 100 का 110 105 पे इशू हो रहा है. सो सिचुएशन में यू हैव टू मॉनिटर कि which kind of journal entry should be passed at the time of the issue of share. And as well as we discussed the important topic related to the share, that is a call-in arrear. You know very well what is call-in arrear. When shareholder does not pay the calls amount on the time, so the amount will be taken as a call-in arrear. And this topic is already discussed in the few last videos. Last video, that is the what is the meaning of call-in arrear when we are talking about the types of the share capital. So मैंने वहाँ पे आपको बताया था what is the meaning of the call-in arrear. So basically today we will move to the two important part of the share, that is a security premium, that is a when company issued its share more than its face value, and number two, call-in arrear, when any shareholder fails to pay the amount of the calls. So what types of the journal entry should be passed in our bank in our account. So today we will move to the new topic.
So let's start. So you can see on your screen as I image, that is a point number 4, that is issue of share at premium. So what is issue of share at premium? According to Companies Act 2013 section 52, when share are issued at a price higher than the face value of the share, it is said the share are issued at premium. यानी जब कोई कंपनी अपने शेयर को 10 फेस वैल्यू से ज़्यादा शेयर वैल्यू पे इशू करती है, ज़्यादा प्राइस पे इशू करती है, उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. If a share of the face value of rupees 100 is issued at rupees 110, the 10 will be the premium on this share. सपोज 100 रुपए का शेयर है और कंपनी उस शेयर को कितने पे इशू करी, 110 रुपए में, जो 10 रुपए आ रहा है उसे हम बोलेंगे प्रीमियम ऑन शेयर. A company may issue at share at premium only when the public is willing to buy them at a higher value. ये बात याद रखनी है. एक कंपनी अपनी शेयर को प्रीमियम पे तभी इशू कर सकती है जब पब्लिक, यानी जो पब्लिक कंपनीज हैं, सॉरी पब्लिक है, वो एग्री हो, उनके अंदर ये डिजायर हो कि वो उस कंपनी का शेयर ज्यादा वैल्यू पे खरीदने के लिए एग्री हो. एंड दिस इज अ पॉसिबल इन द केस ऑफ ओल्ड कंपनी पेइंग डिविडेंड एट अ हायर रेट. जनरली वही कंपनीज अपना शेयर प्रीमियम पे इशू कर पाती है जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी हो. जनरली न्यू कंपनीज के शेयर्स प्रीमियम पे सोल्ड आउट नहीं होते हैं. जो पुरानी कंपनीज हो, जो ऑलरेडी हायर रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, उन्हीं का, जाहिर सी बात है, उन्हीं के कंपनीज के शेयर हायर प्राइस पे सेल होंगे. There is a no maximum limit of premium fixed in the law except the premium amount should be credited to the separate account called as a security premium reserve account. Yes, इसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है लॉ में, और ये बात क्लियर किया गया है कि अगर कोई कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे इशू करती है तो सिचुएशन में उसे अपना एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा. उस अकाउंट का नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. यू नो वेरी वेल, security premium reserve account, it is a profit, you know, and which kind of profit? It is a capital profit. The premium on the issue of the share being capital receipt and not a revenue receipt. ये भी बात आपको ध्यान रखनी है. And may be used for the following purpose. इसका पैसा हम इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. नंबर 1, फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर टू द मेंबर ऑफ द कंपनी. यानी जब कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी तो उस समय जो एक्सपेंसेस आएंगे, यू नो, बोनस शेयर मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर. सपोज कंपनी क्या करती है, बोनस के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को फ्री का शेयर देती है, बोनस शेयर, जिसके बदले कंपनी अपने शेयर होल्डर से कोई मनी चार्ज नहीं करती है. तो बेसिकली ये पॉइंट आप मन में रख लीजिए कि कंपनी जब भी बोनस शेयर इशू करेगी तो उस इशू करने में मान लीजिए सपोज के 10 लाख 15 लाख रुपीज एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, तो वो उस एक्सपेंस को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट कर सकती है. एंड फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यू नो वेरी वेल, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी बियर करती है, वो सारे खर्चे भी वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट कर सकती है. फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस एंड कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी. यानी अगर कंपनी अपने किसी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना चाहती है, अपने इशू पे कोई कमीशन जस्ट लाइक अंडर राइटिंग कमीशन देना चाहती है, या किसी भी सिक्योरिटी को डिस्काउंट पे, जैसे 100 रुपए की सिक्योरिटी है उसको 90 रुपए में देना चाहती है, तो जो 10 रुपए डिस्काउंट है वो 10 रुपए को सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकती है. नंबर डी, फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ और डिबेंचर ऑफ द कंपनी. और ये भी ध्यान रखिए कि जब कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर रिडीम करेगी, जैसे जब उसका रिपेमेंट करेगी, तो रिपेमेंट अगर पार पे हो रहा है तो ठीक है, प्रीमियम पे हो रहा है तो वो भी तो लॉस है. यानी हमने इशू के वक्त लिया 100 रुपए और रिडम्पशन के टाइम दे रहे हैं 150 रुपए, तो 150 का माइनस 100 इक्वल्स टू 50 रुपीज जो कंपनी को रिडम्पशन पे लॉस हो रहे हैं, उस लॉस को भी हम प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट बेसिकली कंपनी जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, यानी कंपनी को जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा मिल रहा है, it is a capital profit, and such kind of profit should be adjust against the capital losses, and there are various kind of capital losses जिसको मैंने पॉइंट ए से लेके पॉइंट ई तक बताया है. वो सारे पर्पस के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को लेकर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. उस प्रॉफिट से आपको क्या करना है, अपने कैपिटल लॉसेस को, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट कर सकते हैं. एज वेल एज कंपनी एडजस्ट सच काइंड ऑफ द प्रीमियम फॉर बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर एंड अदर सिक्योरिटी एज पर सेक्शन 68.
सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर के कंडीशन में भी यूज कर सकती है। बाईबैक ऑफ इन ओन शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी खुद के शेयर खुद से खरीद लेती है। सपोज कंपनी हैव अ सफिशिएंट फंड अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है, वो नहीं चाहती कि शेयर होल्डर्स कोई आउटसाइडर उस शेयर को खरीदे, तो वो अपने कंपनी को अपने ही पैसे से अपनी कंपनी के शेयर को खरीद लेती है। तो इस सिचुएशन में भी वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को एडजस्ट कर सकती है। द बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अपीयर अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, यानी जो पैसा बचेगा रिजर्व प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाएंगे। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में बी डिमांडेड आइदर इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट। ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि कंपनी बेसिकली जो अपना प्रीमियम का पैसा है वो एक साथ भी मांग सकती है या पार्ट में मांग सकती है। जैसे सपोज 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सपोज कंपनी के पास 100 रुपए का शेयर है और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का है। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100। कंपनी उस 100 रुपए के शेयर को कितने पे इशू करती है? 120 रुपीज में इशू करती है। तो जब 120 रुपीज में शेयर को इशू करेगी तो बेसिकली जो 20 रुपीज है वो उसके पास ऑप्शन है, वो किस तरह से पैसा मांगती है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉस्ट। यू नो प्रीवियस क्वेश्चन में यू नो वेरी वेल कि जब कंपनी 100 रुपए का 100 रुपए का 100 रुपए मांगती हो या 100 रुपए का 120 रुपए मांगती हो, बेसिकली उसे इन्हीं 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगना होता है। तो ऐसे ही सपोज उसको 100 रुपए मांगना है तो उसने क्या किया? 50 मांग लिया, 30 मांग लिया, 20 मांग लिया, ऐसे मांग लिया। एज वेल एज 20 रुपीज जो प्रीमियम है उसे भी वो चाहे तो एक साथ अलॉटमेंट में मांग ले। उसके पास सिचुएशंस क्या क्या है? सिचुएशन नंबर 1, वो हो सकता है पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे मांग ले। सिचुएशन नंबर 2 ये भी हो सकती है कि वो 10 रुपए यहां मांग ले, 10 रुपए यहां मांग ले। सिचुएशन 3 ये भी मिल सकती है कि वो 5 रुपए यहां मांग ले, 5 रुपए यहां मांग ले, 10 रुपए यहां मांग ले। इट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। कंपनी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन कि वो इस 20 रुपए को या तो एक साथ किसी भी एक चीज पे मांग ले, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल्स पे, या फिर कंपनी हैव अ ऑप्शन कि वो 30 रुपए यानी वो 20 रुपए कंपनी हैव अ ऑप्शन कि वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में मांग ले, some amount with the application, some amount with the allotment and some amount with the cost. So it totally depend on the company. So आगे ये भी लिखा है कि the balance amount of the security premium may be demanded either in lump sum or in installment, and the amount of premium may be demanded along with the application, allotment and call money। यानी वो चाहे तो एप्लीकेशन के साथ भी पैसा मांग सकती है, अलॉटमेंट के साथ भी पैसा मांग सकती है और कॉल के साथ भी पैसा मांग सकती है। So I hope in this with the help of this picture we can understand what is the concept of the issue of share at premium, number 1 point. Number 2nd point is what are the uses of the security premium amount, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का क्या यूज हो सकता है। एंड नंबर 3, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को हम कॉल्ड अप कैसे करेंगे? लमसम में भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट। लमसम मतलब एक साथ पैसा ले लेना, और इंस्टॉलमेंट मतलब एप्लीकेशन में कुछ पैसा, अलॉटमेंट में कुछ पैसा, कॉस्ट में कुछ पैसा। इट इज डिपेंड ऑन द कंपनीज, इट इज डिपेंड ऑन द गिवन क्वेश्चन। So now we will move to the journal entries when issue of share at premium. So जब कोई कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे इशू करती है तो क्या जर्नल एंट्री पास होती है? लेट्स वी टेक द जर्नल एंट्रीज। Journal entries, please note down in your copy, especially all the pictures which are given in your videos, especially please note down in your copy। जो भी वीडियोस आपको अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैं आपको शो करा रहा हूँ, प्लीज उसका एक नोट्स बनाइए, प्लीज मेक अ नोट्स। एंड एज वेल एज जो मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूँ, वो जो जर्नल एंट्रीज आपको गिव कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो सभी कॉपीज में नोट करिए, बिकॉज सच जर्नल एंट्रीज विल हेल्प टू सॉल्व द एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गिवन इन योर बुक। सो टुडे we will move to the journal entries when share are issued at premium, यानी जब शेयर किस पे इशूड हो? प्रीमियम पे। तो बेसिकली आपको जब शेयर इशूड होता है प्रीमियम पे, तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि एंट्रीज क्या होंगी। यू नो, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल,
Third entry, share allotment to share capital. Fourth entry, bank account debit to share allotment. Fifth entry, bank account debit to share first call. Last entry, bank account debit to share first call. And second last entry था share first call account debit to share capital. तो बेसिकली 6 एंट्रीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी. तो जब भी कोई शेयर प्रीमियम पे इशू होगा तो बेसिकली जनरल एंट्रीज क्या पास होंगी, एंट्रीज पास होंगी जिसके साथ भी प्रीमियम होगा. सपोज एप्लीकेशन के साथ है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के साथ है तो अलॉटमेंट, और कॉल्स के साथ है तो कॉल्स, वो डेबिट होगा. टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. Okay, if premium with the application, so the share application debit to share capital to security premium. If premium is with allotment, so the share allotment account debit to share capital to security premium reserve. If premium with the calls, so share calls account debit to share capital to security premium reserve. And narration is being जो भी मनी हो, application allotment calls, money received ऑन इतना शेयर, जितना शेयर पे पैसा मिला हो, एट द रेट इतने रुपीस पे. ओके, बिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स जो भी मनी हो रिसीव्ड ऑन इतना शेयर एट द रेट ऑफ इतना रुपीस. सो दिस इज द बेसिक जर्नल एंट्रीज व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम. So now we will take the one example, one practical problem and solve your all queries related to the when share are issued at premium. So now you can see the question number or illustration number 7. The question is Ajay Company Limited issued 8,000 equity share of ₹10 each payable at a premium of 4 per share. कंपनीज के पास कितने शेयर्स हैं? 8,000 शेयर, और एक शेयर कितने का है भैया? एक शेयर है 10 रुपए का, 10 रुपीज ईच, एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, और 4 रुपए प्रीमियम के हैं. तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी है? 14 रुपीज. ओके, 10 रुपीज का एक शेयर, 4 रुपीज प्रीमियम, P denotes the premium, and 14 रुपीज. इंस्टॉलमेंट वेयर फिक्स्ड एज अंडर, इंस्टॉलमेंट ऐसे ऐसे मांगा गया. एप्लीकेशन ऑन 4, एप्लीकेशन कितने पे है? 4, एंड ये भी लिखा हुआ है कि 1 रुपीज उसमें से क्या है? प्रीमियम. यस सर, प्रीमियम है, यानी कि 1 रुपीज प्रीमियम है तो 3 रुपए शेयर का होगा, 1 रुपए किस चीज का होगा? प्रीमियम का. प्लीज टेक इट वेरी केयरफुली. द टोटल एप्लीकेशन मनी इज 4, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम का है एज पर द गिवन क्वेश्चन. So the left amount related to the share. Next is amount related to the allotment. Allotment पे 3 रुपए. Allotment है for 3 rupees. उसमें भी प्रीमियम है. Yes sir, including premium of ₹1. तो 2 + 1 P. 2 रुपए शेयर का, 1 रुपए प्रीमियम का. क्योंकि शेयर की वैल्यू तो 10 है ना, 4 रुपए में एक्स्ट्रा मांग रहे हैं. ओके. Next, first call of ₹4 including premium 1. So 3 + 1 P. 1 P means 1 rupees of premium. And the final call 3, जिसमें से 2 रुपए शेयर के होंगे, 1 रुपए प्रीमियम के होंगे. ओके. All the amounts were duly received. Prepares cash book in the books of the company and pass necessary generate. इसमें कैश बुक भी बोला है बनाने को, बट बेसिकली ये पहला क्वेश्चन है प्रीमियम का, सो हम इसमें कैश बुक की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बाद में मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू द जर्नल एंट्रीज. यू नो वेरी वेल, जर्नल एंट्रीज पास करते वक्त हमें क्या करना है? फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट. यू नो वेरी वेल. सो the first entry which are related to the bank account debit to equity share application. Why we write down the equity?
बिकॉज इस क्वेश्चन के स्पेस शुरू में मेंशन है इक्विटी शेयर, सो वी कैन राइट द इक्विटी शेयर। द टू इंपॉर्टेंट पार्ट जो 95% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये कि फॉर्मेट नहीं बनाते हैं मेरी तरह, या मेरी तरह नहीं, मेरे पास स्पेस की कमी है, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट क्रिएट अ फॉर्मेट। बट आपको फॉर्मेट बनाना है, सेकंड इंक बचाने के चक्कर में नहीं रहना है। When question is clearly given about the equity share, preference share, so it is your truly responsibility to write down the share equity before the every share. When we write down the share, so अब हमें क्या लिखना है, equity share. Is that clear? How much shares? Sir, equity share. No, 8,000 share multiplied by application कितने से है, 4 rupees. The total amount is 32,000. Yes, sir. Narration, you know very well, being application money received. Number second, you know, equity share application to equity share capital. Yes, but again, you know very well, एप्लीकेशन के साथ 4 रुपए में 3 रुपए शेयर का है और 1 रुपए किस चीज का है, प्रीमियम का है। सो यू नो वेरी वेल, इन दिस सिचुएशन प्रीमियम अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अभी मैंने बताया द एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक और यहाँ पे क्रेडिट में ऐड हो गया। आप कहोगे सर बंटवारा कैसे होगा, तो 32,000 टोटल एप्लीकेशन मनी थी, द टोटल एप्लीकेशन मनी फॉर 4, जिसमें शेयर का पैसा कितना है 3, तो 3 कितना, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 24,000, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 8,000। यू कैन मैच इट, 24 प्लस 8 32 एंड 32। Okay, number third, allotment money called up करेंगे। What is allotment money? Equity share allotment account debit to equity share capital to security premium reserve. You know, एप्लीकेशन पहले मिल जाता है फिर हम उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, दैट्स व्हाई सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड एंट्री होती है एप्लीकेशन में। बट अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉट फर्स्ट में ही साथ आता है, क्योंकि पहले हम ड्यू करते हैं अलॉटमेंट, देयर आप रिसीव करते हैं। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट अलॉटमेंट जब मांगेंगे तो टोटल अलॉटमेंट मनी कितने से बनेगी, 3 रुपीज। हाउ मच शेयर, 3, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 24,000। शेयर की वैल्यू कितनी है 2, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 16,000, एंड 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 शेयर की वैल्यू है, प्रीमियम की वैल्यू है। इस फिगर के कारण यू कैन इजिली कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। नंबर 4, अलॉटमेंट मनी मिलेगा, तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment, amount is 24,000. Is that clear? Yes sir. Okay, next first call and final call, हम उसी तरह से सेम एंट्री पास करेंगे रिलेटेड टू द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके, यहां मैं एक बॉर्डर लाइन खींच लेता हूं। एंट्री नंबर 4 के बाद एंट्री नंबर 5th, एंट्री नंबर 5th विल बी रिलेटेड टू द फर्स्ट कॉल, इक्विटी फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, equity first call account debit to equity share capital to security premium reserve, and you know very well 4 rupees एप्लीकेशन का था, 3 rupees allotment का था, और ये 4 rupees किसका है, फर्स्ट कॉल का। सो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 32,000, एंड शेयर की वैल्यू कितनी है 3, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 24,000, एंड प्रीमियम की वैल्यू कितनी होगी
8,000 multiplied by 1, that is 8,000. नंबर 6 मिलेगा फर्स्ट कॉल। सर ये तो बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी टॉपिक। व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, यू कैन सी दैट आपने इसमें क्या किया है, सारा प्रीमियम अलग अलग लिया, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल। यू कैन सी दैट द प्रीमियम मनी called in the installment, you can see that premium money called by the company in installment, 4 rupees, 1 rupees application, 1 allotment, 1 rupees first call, 1 rupees final call। उसी तरह से फाइनल कॉल की एंट्रीज देख लो, इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डोंट वरी, अभी मैं जूम कर दूंगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो फाइनल कॉल ऑफ ₹3, you can see that this amount is related to the final call। 8,000 multiplied by 3, 24,000। 8 rupees multiplied by 2, the share value, and 8,000 multiplied by 1, 8,000। और उसके बाद आप इस पैसे को रिसीव कर लो। नंबर एंट्री 8, आप देख भी रहो, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, 1 2 3 4, और ईच की दो दो एंट्रीज होती है, तो 8 एंट्रीज हो गई। What is the amount? 24,024। अब आपकी हेल्प के लिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। ओके, अब आपको क्वेश्चन की जरूरत तो है नहीं, क्वेश्चन में बस इतना याद रखना है, प्रिपेयर कैश बुक इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको कैश बुक बनाना है, तो कैश बुक बनाने के लिए मुझे पता है मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी है। So you can see the solution in one screen। Okay, so you can see that the first is application money receive हुआ, फिर उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, उसके साथ साथ प्रीमियम भी था, फिर अलॉटमेंट ड्यू किया, उसमें प्रीमियम था, रिसीव किया, फर्स्ट कॉल कॉल्ड किया, एंड देयर आफ्टर उसको रिसीव किया, फर्स्ट कॉल के साथ भी प्रीमियम था, एंड फाइनल कॉल के साथ भी प्रीमियम था, उसको भी रिसीव किया। And you know very well in this question is asking about the preparation of the cash book। क्वेश्चन में कहा गया है कि कैश बुक बना के दो। So you know very well when question is asking about the preparation of the cash book, so in this situation हमें क्या करना होता है सर, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कैश बुक बनाने को बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू नो वेरी वेल कि कौन सी एंट्रीज आपको। So after the passing journal entries, now we will move to the preparation of the cash book। You know very well when question is asking about the preparation of the cash book, so in this situation first of all we remove all the entries which are related to the bank। So as we can say कि जितनी भी एंट्रीज बैंक से रिलेटेड हैं, जितनी भी एंट्रीज में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, उन सारी एंट्रीज को हम जर्नल एंट्रीज से नेग्लेक्ट कर देते हैं। As you can see in the screen, the entry number 1 are related to the bank, entry number 4 are related to the bank, entry number 6 are related to the bank, and entry number 8 also related to the bank। So ये सारी entries बैंक से related है, that's why हम इन सारी entries को eliminate कर देंगे, rough कर देंगे from the journal entries, and thereafter we prepared a cash book। How will prepare the back cash book? कैश बुक के डेबिट साइड में जाकर क्या पोस्ट करेंगे, 2 शेयर एप्लीकेशन, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। सो यू कैन सी दैट हमें क्या करना है, सिर्फ कैश बुक का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट, और फिर ये सारी अकाउंट्स को डेबिट कर देना है और उनकी वैल्यूज को भी कॉरस्पॉन्डिंग रूप में डेबिट कर देना है। सो यू कैन सी द सॉल्यूशन। 2 share equity share application 32,000, 2 share allotment 24,000,
2 share first call 32,000 and 2 share final call 24,000. The total is 1,12,000. On the balance is also 1,12,000. So I hope today we cleared all the topic very easily, and in today's video we discussed the important topic of the issue of share, that is a issue of share at premium. When company issued its share more than its face value, it is known as the issue of share at premium. In this video we discussed the first point, what is the issue of share at premium. Number second, what are the uses of the security premium. And number third, what are the accounting treatment on the issue of share at premium. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and I requested to all the students, please solve all the practical problem given in your book. Thank you, thanks a lot.